Very good morning, students. Welcome to your economics session. Today we are going to cover the last topic of our ongoing chapter, Chapter 3, National Income and Related Aggregates. In our last class, we had a discussion regarding nominal GDP and real GDP. We had discussed few numericals as to how nominal GDP and real GDP is calculated, and which out of these two is the better indicator of growth. तो जिससे हमें ये पता चला था that since nominal GDP is based on the current year prices and real GDP is based on the base year prices, so real GDP reflects the true growth in the value of output as the quantity increases. So real GDP gives you a true picture of growth and welfare. So we have discussed a lot about our gross domestic product. Okay, gross domestic product is indeed a great indicator of welfare for any economy, but it has certain limitations also, right? Whenever we talk about anything, तो उसके दो aspects होते हैं, positive aspects and negative aspects. तो अभी तक we've been discussing about the positive aspects of GDP as to why GDP is so important, why it has become of utmost importance that all the economies operating, they need to know about their GDP. ठीक है, क्योंकि it is considered as the index of welfare of the people, and welfare of the people is measured in terms of the availability of goods पर पर्सन. जितना जीडीपी इंक्रीज होगा उतना ही आपका इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, और जब आपकी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा इट मीन्स कि पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, जिसको हम सोशल वेलफेयर कहते हैं. ठीक है, इसी रीज़न की वजह से पॉलिटिशियंस और प्लानर्स जो हैं हमेशा जीडीपी को इम्पोर्टेंस देते हैं. जितना ज़्यादा जीडीपी उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ही अवेलेबिलिटी पर पर्सन है, विच इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी इज running with the idea of social welfare, because economy जो है is driven by the individuals living in the economy. और जब individuals को जो है proper goods and services avail कराई जाती हैं, इकोनॉमी में इतनी प्रोडक्शन हो रही होती है कि उन सब के पास, we living in the society, we living in an economy has an access to all the goods and services that are being produced in an economy. It means इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही है, वो ग्रो कर रही है. इकोनॉमी के पास जो है काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, और उससे उन रिसोर्सेज को वो बहुत एफिशिएंटली और जुडिशियसली यूज़ कर रही है, बहुत कम वेस्टेज है. तो दिस इज हाउ जीडीपी टेक्स अस टू दैट डायरेक्शन दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ग्रोथ एंड वी आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, सो डिस्पाइट नोइंग ऑल दीज बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जीडीपी, नाउ वी शुड बी लेइंग एम्फेसिस ऑन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी. ठीक है, कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ज़रूर है जीडीपी एंड वेलफेयर में, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो सबसे पहले जिस लिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इट टर्न्स अनइक्वल, तो जीडीपी जो है वो राइज इन सोशल वेलफेयर जो है ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा. और इंडिया जो है करेंटली इसी सिचुएशन में है, बिकॉज जीडीपी जो है पर कैपिटा जीडीपी जो है इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, पर स्टार्वेशन डेथ्स जो है वो भी हेडलाइंस को वी आर सीइंग दैट पॉवर्टी इज स्टिल देयर एंड देयर आर पीपल हु आर डाइंग ऑफ हंगर. तो ऐसा कैसे है? Despite having good GDP, there has been a flow in the goods, rise in the flow of goods and services. Despite knowing this fact, still India में जो है starvations, poverty, hunger, ये सारी problems भी साथ साथ prevail कर रही है. तो इसका reason यही है क्योंकि income ज़रूर increase हो रही है, but income जो है वो बहुत unequal way में increase हो रही है. There is distribution of income जो है वो equal pattern में नहीं है. There is unequal distribution of income. Rich is getting richer and poor is getting poorer. तो यहाँ पर GDP ने हमें income तो बता दिया है, because there has been increase in the production of goods and services and there has been increase in income also. But ये जो income है that is going to the particular section of society. ठीक है, कुछ marginal sections of society हैं, they are still deprived of basic necessities. ठीक है, जिसमें food आता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्टार्वेशंस और हंगर जैसी प्रॉब्लम जो है वो अभी भी प्रिवेल करती है. स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया आर अंडर पॉवर्टी लाइन. सो यहाँ पर जस्ट जीडीपी इज इंक्रीजिंग and GDP is going up. GDP का positive relation जो है it is still a good
not be accepted. Why? Because the income is not being distributed equally and many sections of the society are getting deprived of the benefits of those income. Okay, so distribution of income is one limitation. Second is composition of GDP. GDP जो है किस किस चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट करता है. लाइक कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड. लाइक इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जीडीपी इज रिलेटेड टू द ग्रोथ इन द प्रोडक्शन. नाउ production of goods and services, it has to be those goods and services that can be used by the normal residents or normal individuals living in the society. But अगर suppose हमारा GDP जो है इस वजह से बढ़ा कि we have increased the production of our defense goods, then it is serving no purpose to the people, normal civilians living in the society, right? तो इस केस में जो है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी भी बहुत मैटर करता है कि आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो. ऑफ कोर्स वी बिलीव कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस होना भी एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, पीसफुल एनवायरनमेंट को बना के रखने के लिए, एंड वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सोशल वेलफेयर को ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. बट द बेसिक आइडिया बिहाइंड द इंक्रीज इन जीडीपी should be increase in those goods and services, increase in the production of those goods and services जो इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली बेनिफिट दे. ठीक है, तो इस केस में हम जब जीडीपी की बात करते हैं दैट जीडीपी इज इंक्रीजिंग, देन देयर शुड बी a decent composition of those goods and services जो people living in the society को डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर उसमें हम आर्म्ड गुड्स या डिफेंस गुड्स को काउंट कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, देन इट इज नॉट सर्विंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी डायरेक्टली. ओके, थर्ड लिमिटेशन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. ठीक है, नाउ इन रूरल इकोनॉमी स्पेशली इन विलेजेस साइड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है अभी भी एट सम एक्सटेंट इज स्टिल प्रिवेलिंग. ठीक है, पेमेंट्स जो है फार्म लेबर को जो है इट इज़ मेड इन काइंड और रादर देन इन कैश. जो भी वो पीजेंट्स है, स्पेशली जो पुअर पीजेंट्स हैं, द वंस हु आर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ अदर लैंड ओनर्स और अदर जमींदार्स, उनको जो उनकी जो पेमेंट होती है या जो उनकी इनकम होती है, इट्स नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश बट रादर इन काइंड. की जितनी भी प्रोडक्शन हुई उसका कुछ हिस्सा जो है उनको दे दिया गया. ठीक है, सो ऑल सच ट्रांजैक्शंस जो हैं दीज रिमेन अनरिकॉर्डेड. जितनी भी बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑफ कोर्स हम जीडीपी में जो है वैल्यू ऑफ मनी काउंट करते हैं. हम इनकम जो जनरेट होती है उन गुड्स एंड सर्विसेज से, उनकी प्रोडक्शन को जो मतलब बेचने से, हम उस इनकम से ही कंसिडर करते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रो हुआ है नहीं हुआ. तो तो जो पेमेंट्स कैश में नहीं हुई दे स्टे अनरिकॉर्डेड, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है वो अंडर एस्टिमेटेड रह जाता है. एंड टू दैट एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन्स एन अनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. तो ओवरऑल जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं इंडियन इकोनॉमी में, अगर उसका कुछ मेजर पार्ट, बिकॉज वी ऑल नो दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड स्टिल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में जितने भी पुअर पीजेंट्स हैं या जो पुअर फार्मर्स हैं, जिनको जो उनकी इनकम है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं मिलता, उस केस में जो उनकी जो इनकम है, ठीक है, दैट इज बीन अंडर एस्टिमेटेड. ठीक है, उसको हम जीडीपी में काउंट जब हम करते हैं, हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, हम तो टोटल फैक्टर इनकम जो है उसको कंसिडर करते हैं. बट जो इनकम जनरेट होकर भी कैश की फॉर्म में एक फार्मर तक या एक लेबर तक नहीं पहुंची, उस इनकम को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं ना, जो प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में, उसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है वो अंडर एस्टिमेट हो रहा है. तो जो ट्रू जीडीपी जो है दैट इज स्टिल नॉट बीइंग कैलकुलेटेड. ठीक है, तो जो जीडीपी अभी जो निकल के आ रहा है दैट इज बेसिकली एन इनएप्रोप्रिएट नंबर विच डज नॉट इंडिकेट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी और ट्रू ग्रोथ. ठीक है, last limitation is externalities. Now what is externalities? It refers to the good and bad impact of the economic activity without paying the price or penalty for that. ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं जैसे एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, मिस्टर एक्स मेंटेन्स अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई नेबर ऑफ मिस्टर एक्स एंजॉयज इट. Now it adds to the welfare of Mr. Y but he does not pay for it, right? एक्सटर्नैलिटीज बेसिकली क्या होता है कि काम कोई और कर रहा है बट उसके जो बेनिफिट्स हैं इट्स बीन रीप्ड बाय द अदर वन. तो दो तरह की एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज
externalities and negative externalities. Positive में it is very simple, like इन्होंने जो example दिया है book में, if you can read it. Now Mr. X is having a beautiful garden outside his house. He is paying for that garden. उसने उसमें investment किया है, ठीक है, अपनी property को use करके उसने एक बहुत beautiful सा garden बनाया है Mr. X ने. But Mr. Y उसका neighbor है, तो Mr. X के साथ साथ Mr. Y भी जो है उस garden के जो है benefits लेता है, ठीक है. He is enjoying the view, he is enjoying the greenery. उसको जो एक अच्छा ecosystem, एक अच्छा environment मिल रहा है अपने घर के बाद because of the greenery planted in that garden. तो उसके benefits को भी वो properly reap कर रहा है, ठीक है. तो Mr. Y जो है he is being he is enjoying the benefits from the efforts of Mr. X. So this is a positive externality. Now negative externality क्या होती है? जब फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट्रीज जो अपने फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं, स्मोक रिलीज करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज करते हैं, वो सारा का सारा एयर में, वाटर में जो है इट इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ पोल्यूशन. तो इससे जो है सोशल वेलफेयर जो है कम हो रहा है. नाउ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में सोशल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा था. हाउ? बिकॉज मिस्टर एक्स जो मेंटेन कर रहे हैं, जो गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, उससे मिस्टर वाई को जो है पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है. तो दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. बट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है कि जितने भी हमारे जो फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये जब वो पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो बट यू आर कॉजिंग लॉस टू दी एनवायरमेंट. एंड व्हेन एनवायरमेंट सफर्स द लॉस, तो अल्टीमेटली उस एनवायरमेंट में रहने वाले लोगों को भी वो लॉस जो है झेलना पड़ता है, उनकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है. तो मोस्ट फार्मर्स जो हैं या मोस्ट पीपल जो है दे आर नॉट पेइंग द पेनल्टी फॉर दैट. तो जीडीपी जो है इस इम्पैक्ट को जो है वो काउंट नहीं कर पाती, द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. सो इट इज एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. ओके, सो विद दिस we have come to know that despite having lot many positive aspects of GDP, it is still dealing with some negative impact also, and these negative impacts are unequal distribution of income, rare composition या inappropriate composition of GDP, non-monetary exchanges which is happening in the form of barter system, and externalities which is impacting the human life or which is impacting the social welfare. So students, with this we have completed our third chapter, national income and related aggregates. In our next class we will be starting with our next chapter which is completely numerical and practical based. Thank you so much.